Good morning students. Today we will discuss the dictionary chapter part 2. So topic is here dictionary functions and methods. So basically functions and method, if we will talk, both are the same name. Functions, basically for doing the calculation we have no need to make the function here. We will use the built-in function right now. So built-in means already predefined function we will use here. It also said here methods. Function and method both are same. So first of all we will discuss about the len method. The len method, it returns the length of the dictionary. It can count the element with the key name and the value. Pair of form means combine, it will count in the dictionary. Here is the example. Here is an employed dictionary in which name John, salary 10,000, age is 24. How to calculate the length? Then length employee, it will here. So what the output will come? The length will be 3 here. Why it's coming 3? Because it is a pair of form. Then we have the clear method. The clear method remove all the item from the dictionary and dictionary will be empty after this. So if you will display it, it will show you the error. See here we are taking the example of employee dictionary, name John, salary, then age, again same. If you will write here employee.clear, what will happen? It will clear the complete dictionary here. Then we have the third function. The name of the function is here get. Get method, which is used, we can get the item with a given key similar to the dictionary, then bracket we will write the key. If key is not present, then Python will generate the error definitely. So here the example, suppose we have employee1 dictionary here, equal to sign should be there. So let me write it for you. So how to write it? So what I will do here, I can write here emp1 equal to, then salary, uh, department, age and name is given. So emp dot get, then we have to write the key name here, dpt. So when you will write the key name, automatically it will show you the value here. What the value will come here? Sales. So get will help you to find the item value. So item name is department, so value will automatically come with the help of get. Now the items method, it returns all the items. Suppose we have 3 items in the dictionary, so it will return all the items basically in the dictionary, and the item is a containing key and value, so both will come in a, these are written in no particular order. वो किसी भी order में आपको show हो सकती है. So here you can see the example. You will write your employee dot items, then automatically all the items will goes to the my list table. Then we have for loop for displaying it. So automatically it will show you the result here. Then now in the next slide we have keys method. It will only return the key name. Key name here in this example, salary, department and age. So if you want to see all the keys name, you can do it with the help of keys function. Then if you want to return the key value, then we have the values method here. What we will do, the same example we will taking here, and employee dot values we are writing, then only the values will come 10,000, sales and 24. Then we have the update function. You can update it without update function also. Update can enter multiple values in a given dictionary which is already predefined. How is it possible? Like we have two dictionary here, employee1 and employee2. We are writing here employee1 dot update bracket employee2. So what will happen? Employee2 data, let me tell you by the example. So what will happen basically? Employee 2 data will be added at the end. So first after 24 you can see automatically here employee 2 data will display. In such case name diya, salary is also here, then department. If you will print the value employee 1, it is coming here salary, you can see 54,000, then department sales, then name diya is coming in case of employee 1. So employee 1 will display the following values. So these things are updated. Now you can see in employee 2, salary is there, department is there, then
You can see salary is coming 54,000, department sales is here, name is Dia coming. So automatically you can see it is being updated by the update function. So with the help of update, you can update the value. So this method merges the key and pair of value with the new dictionary from the original one. Adding or replacing as needed, the new item in the new dictionary are added to the old one or override any item if already with the same key name. So you can see overriding means it will be overwritten, so automatically it will be deleted here. So if you will add employee 1 with employee 2, already name is given there, so name already overridden here, then name Dia is coming, John is removed, then salary already there, then salary 54 will come, then department is not there, so department is coming, and age is given 24. So if the same existing, if you can see here we have the same, this one is also same, this one is also so it is coming one time, जो भी आप अपडेट कर रहे हो वही वैल्यूज में ये शो करेगा. Finally we have the next example here. We have completed all the function. Now we are going to discuss some important programs. As you can see here, here's a list 1 ABC, list 2 HLT, and list 3 0 1 2. Write a program to add list 2 and 3 to list 1 as single element each. The resultant list should be in order of list 3, element of list 1 and list 2. तो list 3 के अंदर आपके elements होंगे first list 1 की, then list 2 के. लेकिन ये सारी चीज़ें मैं one by one कर रही हूँ. First of all, what we will do here, we have taken list 1, then list 2, then list 3. These are the predefined list is given, so we are going to print it first. Then according to the question it is said here कि list 2 में आपको क्या ऐड करना है, single item at the end of list 1. So you will use here the append function, list 1 dot append, then you are writing here list 2. So what will happen, only the single item will be inserted as a single element, you have to use it from the list 1. Then adding list 3 as a single element at the start of list 1. So insert function will be used here. So list 1 dot insert 0 list 3. So list 3 first item will be added here. Then after adding these two list as an individual element, now we have to print it. So what we will write here, print, then in bracket list 1. So it will show you the all result here. With the help of append and insert function, you have done this program. Now in the next program we have list 1, list 2 and list 3. What we have to do, individual elements of list 2 and 3, same question. Resultant should be contain the order of list 3, first element of list 1, then element of list 2. But here we are adding with the help of extend function, because at the end we have to add. So what we can use here, we are using only extend. So complete list will automatically come here because extend can add the multiple values. So list 3, in list 3 we have to do it, list 3 dot extend list 1, then list 3 dot extend list 2. So after adding these two lists individually, then you can print it. Okay, with the help of extend it is possible. So the output of the following program will be like this. You can see here list 1 is coming, list 2, then list 3. After adding what will come, 0 1 2, then ABC, then H L T will come. Now the next program, write a program to find an element's index or the position in a tuple without using index function. So here you can see first is a tuple is given, then you are inputting a character value here. Then what we have to do, we whatever character you will input, if it is available, then loop, then automatically it will be break from the loop. If it is not available, then automatically it will count. So what we have to do, find an index element position without using the index function. हमें इंडेक्स फंक्शन को यूज़ नहीं करना और हमें एलिमेंट की जो भी हम इनपुट करा रहे हैं वो उसका इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है. सो एंटर अ सिंगल कैरेक्टर विदाउट द कोड्स. तो आपने इफ़ कैरेक्टर इन टपल, अगर कैरेक्टर है टपल में
तो क्या होना चाहिए, काउंटिंग करानी है तो काउंट इक्वल टू 0। फिर हमने फॉर लूप लगाया है फॉर ए इन टपल, फॉर ए इन टपल। उसके बाद हमने लिखा है इफ़ ए नॉट इक्वल टू कैर, अगर ये कैर के इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको काउंटिंग में ऐड कर देंगे, मतलब इट विल बी काउंटेड। देन एल्स इज ब्रेक हियर, so automatically what will happen, enter a character, you can see in the output also, enter a single letter without quotes। तो आपने I एंटर किया, I is at position 3 in, ये 3 पोजीशन पे है, तो ये आपको कैसे पता चला। देन वी आर राइटिंग हियर P, so P is at position here 1, so first P is coming here। so how is it possible, it is possible if we are using here the count function। तो count we are writing here print, then char is at index count, count we are writing here, in case of else we are writing it is not available। so in such case what we are doing, we are comparing it with the inputted character। so here correction should be there कि अगर आपका a जो है वो char के इक्वल नहीं है डेफिनेटली, तो ऑटोमेटिकली काउंटिंग आपका इंक्रीज करता रहेगा, तो ऑटोमेटिकली आपको ये पता चल जाएगा कि वो कैरेक्टर कौन से नंबर पे है। देन वी हैव द नेक्स्ट प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू चेक द प्रेजेंस ऑफ अ वैल्यू इनसाइड अ डिक्शनरी एंड प्रिंट इट्स कीज। सो हियर वी हैव अ डिक्शनरी, you can see, then we are inputting the value। so now we have to check the presence of the value कि वो डिक्शनरी में है कि नहीं, अगर है तो उसकी की हमें प्रिंट करानी है। सो नाउ एंटर द वैल्यू यू वांट टू सर्च, सपोज वो INP है, तो INP इन इन्फो डॉट वैल्यू, वैल्यू फंक्शन क्या करता है, वैल्यू पे वर्क करेगा, की नेम की जो वैल्यू है उस पर वर्क करेगा, तो हम सिर्फ सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहे हैं। फिर हमने फॉर लूप चलाया फॉर ए इन इन्फो, फॉर ए इन इन्फो का मतलब ये है कि जो आपकी जो भी इंफॉर्मेशंस आई हैं, मतलब जो भी आपकी डिक्शनरी है उसमें से ये आपको अलग अलग की नेम और की वैल्यू दोनों आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर हमारा लिखा हुआ है कि जो हमारी वैल्यू हमने गेट की थी इफ़ के अंदर, अगर वो इक्वल हो जाती है आपके पर्टिकुलर इन्फो के अंदर जहाँ पे भी वो आपका मैच कर जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, वो की का नेम आपको प्रिंट करके दे और लूप से बाहर आ जाए। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, उसी के बेस पे जैसे आपने सर्च किया ENVC, तो की जो है वो ऑटोमेटिकली की वैल्यू आपको ये शो कर देगा। सेम एज इट इज़ अगर आपको अपर केस में फाइंड आउट करना है कि अगर वो कैपिटल लेटर में है तो हम उसके लिए भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल में भी हो सकती है कैपिटल में भी हो सकती है, तो सेम वही कंडीशन लगाएंगे, बस हम अपर लिख देंगे आगे कि अगर वो अपर से मैच करेगी तो फिर आपको ये शो कर देगा। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी आर गोइंग टू स्टार्ट sorting techniques। As you know, we can arrange the data with the help of sort function, but here we are going to discuss the two sorting, that is bubble sorting and insertion sorting। Without using predefined function, we are going to arrange the records of a dictionary or list or tuple, you can do that। So how is it possible? First of all, we have to learn about the concept। we have many sorting method, either we can do it with the help of quick sort, bubble sort, selection sort, etc. But now in the syllabus, first we will discuss about the bubble sort। Obviously it's very important topic, so we have to be very careful while learning this। So bubble sort, the basic idea of the bubble sort is to compare two adjoint values and exchange them if they are not in proper order। जब हमारी वैल्यूज़ प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होगी, डेफिनेटली हमें उसको अरेंज करना है, तो अरेंज करने का मेथड ये होता है बबल शॉर्टिंग में। फर्स्ट मेथड इज हियर, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स, कंपेयर द first and second element। if the first element is the greater than second element, then they are swapped। now I will use here the marker, as you can see here we are comparing the value, so first index value will be compared with the second one। if first value is greater, then it will be swapped, otherwise it will not be swapped। as you can see here, the value is not greater here, so definitely it will not be swapped। so step 0 means in first case when we will compare the value, if it is greater then it will be swapped। so now no swapping will take place here। then what will happen, we will go, then after then what we will do, compare the second and third element and swap them if they are not in order।
मीन्स आपको फिर से कंपैरिजन करनी है। अगर आपकी वैल्यू ग्रेटर है तो फिर से आप स्वैप कर देंगे, नहीं तो आपको आगे इसी तरह से कंपेयर करते रहना पड़ेगा। सो नाउ 45 विल बी कंपेयर बाय 2, डेफिनेटली इट इज़ ग्रेटर। सो व्हाट विल हैपन, इट विल बी स्वैप डाउन। आफ्टर स्वैपिंग व्हाट विल हैपन, 0 will be transfer here and 45 will be transfer here. So now this is the third case. इन i इक्वल टू 0, i 0 का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम जब आपका लूप चला तो ये फर्स्ट कंपैरिजन है। सेकेंड टाइम जब लूप चला तो i की वैल्यू आपकी 1 हो गई है, दिस वन। देन i इज़ हेयर नाउ 2। तो नाउ वी विल कंपेयर दीज टू वैल्यूज़ 45 एंड 11। जब आप 45 को 11 से कंपेयर करेंगे डेफिनेटली ये ग्रेटर है, तो क्या होगा, 45 इधर आ गया, 11 स्वैप हो गया। नाउ इन थर्ड केस, मतलब आपने फर्स्ट टाइम लूप चलाया, सेकेंड टाइम किया, देन थर्ड टाइम, नाउ द फोर्थ टाइम ये क्या कंपेयर करेगा, 45 को माइनस से। अगेन 45 ग्रेटर है तो क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगी, -9 इधर और ये इधर। सो नाउ फर्स्ट टाइम when we have started with these value, what we find the greatest value, मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो एंड में प्लेस हो जाती है इन केस ऑफ बबल शॉर्ट। तो ये जो टेक्निक है, दिस टेक्निक वी विल कीप ऑन डूइंग इट जब तक कि सारी चीज़ें नहीं हो जाती। तो डेफिनेटली इन केस ऑफ बबल शॉर्ट वी रिक्वायर द 2 लूप्स। फर्स्ट लूप क्या करता है, कंपैरिजन का काम करेगा। फर्स्ट लूप में जैसे आपका ये स्टेप 0 लिखा हुआ है, स्टेप 0 का मतलब है फर्स्ट टाइम जब हमने सबको कंपेयर किया ग्रुप में, पार्ट में लेके, देन फाइनली व्हाट वी गॉट, ओनली वन आइटम, जो ग्रेटेस्ट आइटम है वो लास्ट में प्लेस हो गया। नाउ व्हाट अबाउट द रेस्ट आइटम, अब हमें एक ऐसा लूप चाहिए जो आपकी वैल्यूज़ को आगे फॉरवर्ड ऑन करे और नेक्स्ट टाइम ये 45 को क्या करेगा, कंपेयर नहीं करेगा, फिर से ये बिगनिंग से स्टार्ट होगा। नाउ सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। Now that is a step 1. इन केस ऑफ स्टेप 1 मतलब सेकेंड टाइम, यानी कि मैंने आपको बोला था 2 लूप चलेंगे, एक लूप कंपैरिजन के लिए होगा, हर बार जो कंपेयर करेगा वैल्यू को, और दूसरा लूप जो होगा वो आपको उस प्रोसेस को फिर से कंटिन्यू करने के लिए फॉरवर्ड करेगा। मतलब जो चीज़ें आपकी अरेंज हो चुकी है उसको हमें स्किप करना होगा। जैसे यहाँ पे 45 अरेंज हो चुका है तो उसको स्किप करके हमें फिर से ये प्रोसीजर स्टार्ट करना होगा। तो इस चीज़ों को बार बार करने के लिए, जैसे स्वैप, ये कंपैरिजन बार बार हो रही है, फाइनली ठीक है, लेकिन ये जैसे एक बार ही कंप्लीट हो जाती है फिर दोबारा से स्टार्ट हो रही है। सो व्हाट वी वांट, 2 लूप्स, जिससे कि हमारी आइटरेशन बढ़ती जाए। तो स्टेप 1 में अब दोबारा से क्या होगा, फिर से वही सेम प्रोसीजर होगा, -2 को 0 से कंपेयर करेगा, ऑब्वियसली -2 लेस देन है तो ये स्वैप नहीं होंगे, नो स्वैपिंग, सेम प्लेस पे आपके ये रहेंगे, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, अगेन नेक्स्ट 2 वैल्यूज़, 0 ग्रेटर नहीं है तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। देन 11 और -9, 11 ग्रेटर है तो डेफिनेटली स्वैपिंग होने वाली है। तो नाउ इन सेकेंड स्टेप व्हाट हैपन, हमें 2 आइटम मिल गए जो हमारे अरेंज हो गए। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, फिर से -2 से शुरू करेंगे। सो नाउ द स्टेप 2, मतलब स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 2। स्टेप 2 में यहाँ पे क्या होगा, 1 सेकेंड, स्टेप 2 में क्या होगा, फिर से आपका -2 0 कंपेयर होगा, -2 को 0 से कंपेयर किया तो नो स्वैपिंग हो रही है। फिर आपने 0 को -9 से कंपेयर किया, -2 इज़ ग्रेटर, नो, एज यू नो, 0 ग्रेटर देन -9, येस 0 ग्रेटर होता है -9 से, तो आपकी स्वैपिंग हो जाएगी। तो फाइनली आपको ये मिला, इससे आपको क्या मिल गई है, ये 3 वैल्यूज़ अपनी पोजीशन पे अरेंज हो गई है। अब ये 2 वैल्यू बची है, तो फिर से आपका लूप चलेगा, बिगनिंग से आपकी कंपैरिजन होगी -2 और -9 के बीच में। अब आपको क्या पता चल रहा है, -2 जो है वो डेफिनेटली ग्रेटर है -9 से, क्योंकि वो पहले आता है। तो -9 और -2 आपके स्वैप हो गए, ये तो ऑलरेडी स्वैप्ड थे, अब आपका लूप रुक जाना चाहिए। तो दिस इज़ कॉल्ड बबल शॉर्टिंग, जिसमें क्या होता है, आप बिगनिंग से कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करते के बाद आपको फाइनली जो ग्रेटेस्ट आइटम है वो मिल जाता है, फिर सेकेंड टाइम सेकेंड ग्रेटर मिलता है, देन थर्ड ग्रेटर, देन फोर्थ एंड सो ऑन। तो वी नीड हेयर 2 लूप्स। So whenever we will write the code, as you can see here, code is written here, we will do the bubble sorting with the help of list. So now you can see, here is a list, these are the items, as you can see here, the same item we can take anything, as you know.
So now we are printing the list here. Then we are finding the length. पहले हमें लेंथ पता होनी चाहिए, तभी हम लूप चलाएंगे. फिर हम एक लूप चला रहे हैं. ये आई है आपका फॉर आई इन रेंज n. जो लूप है आपका n तक लिखा हुआ है. जैसे 5 आइटम है तो आपको 0 to 4 तक लूप चलाना है. मैंने कहा था 2 लूप चलाएंगे. कमेंट्स में लिखा है ऑलरेडी. जो फर्स्ट लूप है वो आपका आइटरेशन को इंक्रीज करने के लिए होगा, और जो ये सेकंड लूप है ये कंपैरिजन के लिए है. कंपैरिजन इज़ रिक्वायर्ड एज यू नो वेरी वेल. जो कंपैरिजन होगी उसमें जे जो है वो 0 से स्टार्ट होगा और ये n-1 माइनस तक जाएगा. बिकॉज n-i का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि आपका ये जो लूप जा रहा है n-1 वाला, तो ये डेफिनेटली n-1 माइनस का मतलब ये है कि आप जब ये लूप पे वर्क करेंगे तो जब आपकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो अगले बार से वो नहीं लेना चाहिए. जैसे आपकी 45 आपने देखा था पहले अरेंज हो गई, तो 45 को स्किप करके आपको अगली बार 45 को स्किप करके कंपैरिजन करनी है. तो इसीलिए जो लूप है वो आपका n-1 तक चलेगा. तो अब हमें करना क्या है, हमें स्वैपिंग करानी थी. स्वैपिंग किस बेस पे करानी है कि हमारा कंपैरिजन होगा. तो अगर हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो क्या कंपैरिजन होगा, ए जे का ए जे प्लस 1 से, और फिर हम उसको स्वैप करेंगे. स्वैप कैसे करेंगे, ए जे कॉमा ए जे प्लस 1 इक्वल टू, अब जे जो है वो जे प्लस 1 जाएगा और जो जे प्लस 1 है वो ए जे हो जाएगा. नाउ आई थिंक वी हैव टू गो विद द प्रोग्राम्स. मतलब जो हमने यहाँ पे किया था, देखो ध्यान से. यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, -2 को 45 से कंपेयर करेंगे. तो -2 क्या है आपका, दैट इज़ योर ए जे. ये आपका क्या है, ए जे. अब ए जे को आप किससे कंपेयर करेंगे, ए जे प्लस 1 से कंपेयर करेंगे. प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट वैल्यू. तो -2 ए जे आपका यहाँ से शुरू हो रहा है 0 से, तो 0 और ये आपका 1 हो गया. तो 0 को 1 से कंपेयर कर रहे हैं. तो जब कंपैरिजन में ये ग्रेटर निकलेगा, डेफिनेटली अभी आपका क्या है, ग्रेटर नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम तो ग्रेटर होगा और लूप आगे भी बढ़ेगा, ये आपको पता है. तो अगर ये ग्रेटर है तो क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगी. स्वैपिंग होने का मतलब है आपका जो ए जे है उसमें ए जे प्लस 1 चला जाएगा. ए जे मतलब ए जीरो. ए जीरो में तो अभी हो नहीं रहा है. अभी फ़िलहाल हम किसकी बात करेंगे, लेट मी क्लियर इट सो यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली. सो व्हाट आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग अबाउट ए जे. देखो बेटा, ए जे जो है फर्स्ट टाइम, जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो ये जे है और ये जे प्लस 1 है. तो ए जे को मतलब ए जीरो को A1 से कंपेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये नहीं होगा. फिर अगली बार क्या होगा, 1 को आप 2 से कंपेयर करोगे. तो आई एम टॉकिंग अबाउट A1. अब A1 जो है वो ए जे प्लस 1 से कंपेयर होगा. प्लस 1 का मतलब है 2. तो A1 को A2 से जब आप कंपेयर करेंगे तो ये ग्रेटर है, तो क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगी. तो स्वैपिंग का लॉजिक क्या होगा, डेफिनेटली लॉजिक ये होगा कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आप ए जे. ए जे मतलब A1. A1 में क्या चला जाएगा, A2. तो ये A1 है आपका, इसमें आपका A2 चला जाएगा, यानी कि 0 चला जाएगा. और उसके बाद ए जे प्लस 1 में क्या जाएगा, ए जे चला जाएगा, यानी कि ये. तो इस तरह से आपकी स्वैपिंग हो जाएगी. और ये कब तक चलेगा, जब तक ये वैल्यू ग्रेटर रहेगी. तो ये कंपैरिजन हम किस में करा रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग दैट, ये सब हम यहाँ पे करा रहे हैं. इन दिस, ये सब हम यहाँ पे स्वैपिंग करा रहे हैं. तो ये स्वैपिंग का लॉजिक क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम कंपैरिजन करते जाएंगे 1 by 1. और ये जो बाहर वाला लूप है, दिस वन, ये लूप इंडिकेट कर रहा है इसको. दिस लूप इज इंडिकेटिंग दिस स्टेप 0. ये आपका स्टेप 0 है. जैसे फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0 हुई तो ये 0 के लिए चला. फिर आपकी आई की वैल्यू 1 होगी, ये स्टेप 1 उसके लिए है. फिर आई की वैल्यू आपकी 2 होगी, फिर आई की वैल्यू 3 होगी. तो ये स्टेप जो है ये आई के लिए है कि ये सारी प्रोसीजर हमें बार बार करनी है. तो आई इसको इंडिकेट कर रहा है. आई आपका क्या इंडिकेट कर रहा है कि उस प्रोसीजर को हम बार बार रिवर्स कर रहे हैं. तो ऑलरेडी ये हैपनिंग हो रही है, ठीक है बेटा. सो दिस इज द रीजन हियर वी नीड द टू लूप. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट इज द ब्रीफ ऑफ बबल शॉर्टिंग. बबल शॉर्टिंग में सबसे पहले क्या होता है, हम ग्रेटेस्ट जो वैल्यू होती है फर्स्ट टाइम वो एंड में प्लेस हो जाती है बाय कंपैरिजन. ठीक है, इस तरह से हम इसके अंदर काम कर रहे हैं. एज यू कैन सी द एग्जाम्पल हियर, इट इज़ ऑल्सो गिवन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So hope you understood that.
And now the last sorting we will discuss, insertion sort. Okay, whenever we are talking about the insertion sort, it is a sorting algorithm again. इंसर्शन शॉर्ट में क्या होता है, इस मेथड के अंदर हमारा जो सेकंड एलिमेंट होता है लिस्ट के अंदर, उस सेकंड एलिमेंट को हम एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्लेस करते हैं जहाँ उसकी एक्चुअल पोजीशन है शॉर्टिंग के अंदर, मतलब कहाँ उसको होना चाहिए। और आपकी लिस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक शॉर्टेड लिस्ट और एक अनशॉर्टेड। और जो आपकी शॉर्टेड पार्ट होती है वो आपका दैट विल बी एट द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड पे आपका अनशॉर्टेड पार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली लिखा हुआ है इंसर्शन शॉर्ट इज अ शॉर्टिंग एल्गोरिथम दैट बिल्ड अ शॉर्टेड लिस्ट वन एलिमेंट एट ए टाइम फ्रॉम अनसॉर्टेड लिस्ट बाय इंसर्टिंग द एलिमेंट एट द करेक्ट पोजीशन। हम एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है, पहले स्टेप में हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। जब हम सेकेंड एलिमेंट को लेते हैं, उसकी पोजीशन सेट करते हैं, तो सेकेंड एलिमेंट को पहले कंपेयर किया जाता है उससे बिगिनिंग वाले से। अगर वो वैल्यू लेस देन है तो वो ऑटोमेटिकली स्वैप हो जाती है। तो यहीं पे ये लिखा हुआ है। और उसके बाद उसको प्रॉपर पोजीशन पे इंसर्ट करने के लिए हम शिफ्टिंग करते हैं एलिमेंट्स की, जो उसके आगे के एलिमेंट है राइट साइड शिफ्टिंग होती है। और ये प्रोसीजर तब तक चलता रहता है जब तक कि हमें फाइनल आंसर अपना नहीं मिल जाता है। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट इट नाउ। एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल 25, 17, 31, 13 और 2। अब हम क्या करेंगे इसमें, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा 17 है उस 17 को एक प्रॉपर पोजीशन पे इंसर्ट करेंगे, मतलब उसकी एक्चुअल लोकेशन है कहाँ। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर कराएंगे 25 से। 17 इज़ लेस देन 25, यस मैंने बोला था अगर लेस देन है तो आपको स्वैपिंग करानी है, तो हम इंटरचेंज कर देंगे वैल्यू। तो होगा क्या, 17 इधर आ जाएगा, 25 इधर चला जाएगा। फाइनली उसके बाद क्या होगा, आगे के जो भी एलिमेंट है 17 आपने इधर कर दिया ओके, लेकिन अब जो आगे की पोजीशंस के एलिमेंट है वो भी कंपेयर होंगे। अब कंपेयर होने का मतलब ये है कि ये आपका रिवर्स साइकिलिंग में कंपैरिजन होता है। मतलब जहाँ से आपने शुरू किया है लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, आपका शॉर्टेड एलिमेंट होते हैं, और राइट हैंड साइड में आपके अनशॉर्टेड डेटा होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अभी आपका शॉर्टेड डेटा हो चुका है क्या, 17, 25, और इधर वाला जो पार्ट है आपका वो अनशॉर्टेड है, ये शॉर्टेड है ये अनशॉर्टेड है। तो इस तरह से ये काम होता है। अगली बार क्या होगा, आपको ये नेक्स्ट वैल्यू लेगा और उसको इससे कंपैरिजन करेगा। मतलब नेक्स्ट टाइम क्या लेगा, डेफिनेटली कहाँ से शुरू करेंगे हम, तो हमें क्या मिला, एक सेकेंड। नाउ फर्स्ट आइटरेशन में हमने कंपेयर कराया था 25 को 17 से। कंपैरिजन शोज दैट 17 इज लेस देन, तो उसको स्वैप होना है। 25 को 17 से कंपेयर कराया, 17 इज लेस देन 25, सो व्हाट हैपन, इसको हमने क्या कर दिया, स्वैप कर दिया था। नाउ सेकेंड आइटरेशन बिगिन विद द सेकेंड एलिमेंट। अब सेकेंड एलिमेंट आपका क्या हो गया, डेफिनेटली 25 हो चुका है, तो अब 25 से कंपैरिजन शुरू होगी। 25 की किससे कंपैरिजन होगी, पहले हमने बिगनिंग की कंपैरिजन की थी 25 को 17 से, अब 25 की 31 से कंपैरिजन होगी। 31 अगर आपका लिखा है, नाउ व्हाट वी विल डू हियर, बिगिन विद द सेकेंड एलिमेंट 25 ऑलरेडी स्वैप्ड, वी हैव ऑलरेडी मूव दिस। नाउ गो टू द थर्ड एलिमेंट 31। 31 को हम कंपेयर करेंगे 25 से। 31 अगर ग्रेटर है, डेफिनेटली ग्रेटर है, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। मैंने कहा था लेस देन होने पे स्वैपिंग होनी है, तो 31 आपका लेस देन नहीं है तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। उसके बाद क्या करेंगे, 31 से ही हम 31 से आपका 17 कंपेयर होगा। 31 ग्रेटर है तो फिर भी स्वैपिंग नहीं होगी, लेस देन होने पे स्वैपिंग होगी, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन किस तरह से हो रहा है, सबसे पहले हमने 25 का 17 से कंपेयर किया, फिर हमने 31 का 17 से कंपेयर किया। मतलब बिगनिंग वाले एलिमेंट का हमने दोनों से कंपेयर किया है। 31 को हमने 17 से कंपेयर किया, सो बट इट विल बी इन द सेम रिमेन्स पोजीशन। मतलब 31 की जो पोजीशन है वो अपनी ही पोजीशन पे रहेगा इन सेकेंड आइटरेशन ऑफ द लूप। तो बेसिकली हो ये रहा है कि हम एलिमेंट को जिसको भी ले रहे हैं कंपैरिजन में, उसको शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने प्लेस पे आ जाए, लेकिन वो ऑलरेडी अपनी प्रॉपर प्लेस पे दिया हुआ है, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी इन द गिवन लिस्ट व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर, कि जो मिनिमम वैल्यू है वो तो ऑलरेडी गिवन है फाइनली, बट जो
आपकी 17 वैल्यू है वो ऑलरेडी आपने प्लेस कर दिया करेक्ट पोजीशन पे। अब आपने 25 को प्लेस कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न आएगी, सेकेंड आइट्रेशन के बाद थर्ड आइट्रेशन में 31 की टर्न आएगी। नाउ यू कैन सी वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 31 से तो हो गया था। अब हम क्या करेंगे, 31 को 13 से कंपेयर करेंगे। 13 जो है वो लेस देन है, तो क्या होगा, देन स्वैपिंग होगी। तो स्वैपिंग होने का मतलब है कि जो 13 है वो इधर आ जाएगा और 31 इधर चला जाएगा। सो नाउ यू कैन सी स्वैपिंग की आपने। स्वैपिंग होने से क्या हुआ, व्हाट हैपन, आपका 13 और 31 ये दोनों स्वैप हो गए। देन वी हैव 2। तो यू कैन सी हेयर स्टार्ट फ्रॉम द आइट्रेशन विद द फोर्थ एलिमेंट 13 को आपने 31 से कंपेयर किया और आपको पता चला कि स्वैपिंग करनी है। देन स्टिल एग्जिस्ट द एलिमेंट विच इज़ नॉट स्टिल कंपेयर्ड विथ 13, और वो कौन सा एलिमेंट है, 25। अब हम क्या करेंगे, 13 को कंपेयर होना था 25 से। सिंस 13 इज़ नॉट कंपेयर विथ 25, तो आप इसको कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन हमेशा अपोजिट होनी है, लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमें लेफ़्ट वाला पार्ट शॉर्टेड होता है और राइट वाला पार्ट आपका अनशॉर्टेड होता है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, 13 को 25 से कंपेयर करेंगे। तो जब आपने 13 को 25 से कंपेयर किया तो क्या हुआ, डेफिनेटली 13 जो है वो आपका बिलो है, लेस देन है, तो आपका ये स्वैप हो जाएगा। स्वैप होने के बाद ये ऐसे हो गया। इसके बाद हम फिर भी क्या करेंगे आगे जाके, द लास्ट कंपैरिजन विल बी 13 का आपका 17 से कंपैरिजन होगा। तो मतलब वही सेम चीज़ है, एलिमेंट वही है, 13 को हमें एक प्रॉपर पोजीशन देनी है और वो प्रॉपर पोजीशन क्या है, बिगनिंग में। इसीलिए हम उसको सबसे कंपेयर करने की शुरुआत करें, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में होता है, मतलब अपोजिट होता है। सो नाउ यू कैन सी हियर 13 इंसर्टेड एट द प्रॉपर पोजीशन। नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी द फोर्थ आइटरेशन, व्हाट वी गॉट हियर, 13 प्लेस हो चुका है ऑटोमेटिकली, 17 प्लेस हो चुका है, 25 और 31। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट एलिमेंट 2। 2 विल बी कंपेयर विथ 31, डेफिनेटली ये लेस देन है, तो क्या होगा, स्वैपिंग होगी। स्वैपिंग होने का मतलब है, ये देखो स्वैपिंग हो चुकी है। फिर 2 को हम 25 से कंपेयर करेंगे, ये बिलो है, फिर स्वैपिंग होगी, तो 2 इधर आ गया। अब 2 फिर से 17 से कंपेयर होगा, डेफिनेटली ये लेस है, तो ये फिर स्वैपिंग होगी। फिर ये इधर आ गया, देन डेफिनेटली ये स्वैपिंग होगी। तो फाइनली हमें ये पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपका शॉर्टेड एलिमेंट होता है और हम जो शिफ्टिंग करते हैं वो राइट साइड शिफ्टिंग करते हैं। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं। सो इन केस ऑफ इंसर्शन शॉर्टिंग हमारे 2 पोर्शन होते हैं, एक शॉर्टेड पार्ट और एक अनशॉर्टेड पार्ट। शॉर्टेड लेफ्ट में रहता है और अनशॉर्टेड आपका राइट पे होगा। शॉर्टेड पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा सेकेंड एलिमेंट होता है वहाँ से हम उसको फर्स्ट से पहले कंपेयर करते हैं, और अगर वो लेस होता है सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट से तो आपकी स्वैपिंग होती है, और अदरवाइज स्वैपिंग नहीं होगी। सो नाउ यू कैन सी हेयर वी आर टेकिंग द 17 को पहले 25 से कंपेयर किया जो कि लेस देन है। लेस देन होने पे आपकी स्वैपिंग हो गई, 17 25 हो गया, 31 13 2। तो फर्स्ट टाइम हम 17 की बात कर रहे थे, तो लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी एलिमेंट है ये उससे कंपेयर हो रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट हैंड साइड। तो इस साइड आपकी जितने एलिमेंट था उसको हमने कंपेयर ऑलरेडी कर दिया, तो फर्स्ट आइटरेशन आपका कंप्लीट हो गया। दिस इज़ द फर्स्ट आइटरेशन। नाउ इन केस ऑफ सेकेंड आइटरेशन में आपका 1 सेकेंड, सेकेंड आइटरेशन में क्या है आपके पास, ऑलरेडी ये एलिमेंट्स आप देख रहे हैं 17 25 31 13 2। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड एलिमेंट हमारा यहाँ पे जो हमें विजिबल हो रहा है 17 आफ्टर 17। नाउ इन केस ऑफ वी विल डू विद द 25 हमारा सेकेंड एलिमेंट है, तो हम 25 से कंपैरिजन शुरू करेंगे। 25 आपका किससे कंपेयर होगा, 25 आपका 25 को हम कंपेयर करने जा रहे हैं आगे। बिगिन विद द सेकेंड वन 25 विच इज़ ऑलरेडी स्वैप्ड, सो इट इज़ एट करेक्ट पोजीशन, नो नीड टू मूव, सो मूव अहेड द नेक्स्ट एलिमेंट। नाउ होल्ड ऑन। नाउ अब हमारा ये ऑलरेडी 25 अरेंज्ड है, तो हम 31 पे चलेंगे। तो 31 से हम शुरू करते हैं। 31 को हम पहले किससे कंपेयर करेंगे, डेफिनेटली 31 हमेशा जो कंपैरिजन होगी वो लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, सॉरी राइट साइड पे होगी। तो 31 को 25 से कंपेयर करिए, बिलो नहीं है तो कोई स्वैपिंग नहीं हुई, तो यानी कि आपका सेम एलिमेंट रही। तो 17 25 31 32।
13 2, ये आपके सेम एलिमेंट होंगे अभी भी. नाउ द थर्ड आइटरेशन. इन केस ऑफ द थर्ड आइटरेशन क्या हो रहा है आपका, अब आपने 31 तो ले लिया था, अब आपको 13 से शुरू करना है. तो 13 पहले 31 से होगा, 13 बिलो है तो ये स्वैप हो गए. फिर 13 25 से होगा, बिलो है तो स्वैप हो गए. फिर आपका 13 जो है वो 17 से होगा, तो बिलो है तो स्वैप हो गए. तो 13 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ गया. तो अब आपको समझ आ रहा है राइट साइड से आपकी मूवमेंट हो रही है और आपका जो लोवेस्ट एलिमेंट है वो अपनी पोजीशन पे जाके, मतलब जिस आइटम को आप उठा रहे हो उस आइटम को आप करेक्ट पोजीशन पे जाके प्लेस कर रहे हो. देन वी हैव द नेक्स्ट फोर्थ आइटरेशन. वी विल टेक द 2. 2 के केस में क्या होगा, 2 के केस में सबसे पहले ये यहाँ पे 2 के केस में 31 से कंपेयर हुआ, बिलो है तो स्वैप हो गया. देन 2 जो है 25 के साथ हुआ, बिलो है तो स्वैप कर दिया. देखिए 25 इधर आ गया है थर्ड पे और ये 2 पे चला गया. देन 2 को फिर 17 से कंपेयर किया, बिलो है तो स्वैप हो गया. अगेन 2 अपनी करेक्ट पोजीशन पे आ चुका है. तो आपको ये पता चला कि जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो आपको लास्ट में, बिगनिंग में ये ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ इंसर्शन शॉर्ट. नाउ अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक लिस्ट लेंगे, फिर हम उसे प्रिंट करा रहे हैं. अब हमारा जो लूप चलेगा, आपने देखा था हमने सेकेंड एलिमेंट को लिया था, तो हमारा लूप 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि हम सेकेंड एलिमेंट जैसे 17 था उसकी करेक्ट पोजीशन हमने देखी. तो 1 आएगा, लेंथ निकालेंगे लिस्ट की. अब जो हमारा उससे पहले वाला एलिमेंट है वो हमें कैसे मिलेगा, उसके लिए हम एक ऑब्वियसली यहाँ 2 लूप चलेंगे. एक शिफ्टिंग के लिए जो राइट साइड से शिफ्टिंग करेगा एलिमेंट को कंपेयर करते वक्त, अगर वो छोटा है, और एक तरह से शिफ्टिंग कराने के लिए हम एक और लूप लेंगे और दूसरा लूप उस आइटरेशन को बार बार रिपीट करेगा. तो शिफ्टिंग के लिए एक लूप होगा और एक आइटरेशन को रिपीट करने के लिए, सेम एज इट इज़ जैसे हमने पहले किया था. बस यहाँ पे लूप 1 से शुरू होगा और जो दूसरा लूप है वो 0 से स्टार्ट होगा. और जब हम मूवमेंट कर रहे हैं वो राइट टू लेफ्ट हो रही है, यानी कि आपका जो लूप चलेगा वो रिवर्स ऑर्डर में चलेगा. रिवर्स ऑर्डर में क्यों चलेगा, आप ध्यान से देखिए, ये जो 2 है ये एक तरह से रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है बिगनिंग में, इसीलिए आपको इस तरह से करना होगा. तो जब आप जे वाला लूप लेंगे वो आपका i-1 से शुरू होगा. जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है आपने, एंड की लेस देन ए लिस्ट जे लिखा हुआ है. तो आपका करना क्या है कि जब लूप रिवर्स चलेगा तो जे की वैल्यू डेफिनेटली ग्रेटर होनी चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी तभी आपका लूप शुरू हो रहा है. और जो आप जिससे कंपेयर कराओगे, किससे कंपेयर कराओगे, आइटम को. जैसे पहला आइटम 17 था तो वो की में चला जाएगा. 17 जो है वो आपका बिलो होना चाहिए तभी आपकी शिफ्टिंग होनी है, बताया था मैंने आपको. तो 17 जो आइटम आप ले रहे हो वो कंपैरिजन में जाएगा. किसके कंपैरिजन में जाएगा, जो उससे आपका पिछला आइटम मतलब पहले आइटम है. तो पहले आइटम किस में मिलेगा, आपको आई में मिल जाएगा. आई में आपको आगे वाला आइटम है जिसको आप कंपेयर करने वाले, तो इसीलिए ये बिलो लिखा हुआ है. शिफ्टिंग कैसे होगी, ए लिस्ट j+1 इक्वल टू ए जे, और जे को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा बिकॉज ये रिवर्स में चल रहा है. रिवर्स इन द सेंस, जैसे जे की वैल्यू आपने सपोज करी -1 लिखी हुई है, अभी आपका जैसे आई आपका 1 है तो जे आपका 0 होगा शुरू में. तो 0 के लिए चलाने के लिए 0 से आपका लूप शुरू भी हो रहा है. तो 0+1 मतलब 0+1 का मतलब है कि जो अगला आइटम है वहाँ पे पिछले आइटम को हमें शिफ्ट करना है, और इस तरह से लूप आपका आगे बढ़ेगा. और जैसे ही आप लूप से बाहर आएंगे तो पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके आपका j+1 शिफ्ट हो जाएगा. आई थिंक नाउ वी हैव टू सी दिस कोडिंग here. You can see here we are comparing the value. As you can see in the first iteration, you can see here हमने क्या किया है, 25 को 17 से कंपेयर किया है. तो देयर व्हाट वी हैव रिटर्न कि हमें ए जे पे जाना है. तो जे क्या है आपका 17 को आप 25 से कंपेयर कर रहे हो. तो जब आप कंपैरिजन करोगे आपको ये लेस मिला. तो लेस मिलने का मतलब क्या है, यहाँ पे लेस मिलने का मतलब ये है, ये आपका आई है, आई आपका ये है, दिस इज़ योर आई, और ये आपका जे है. तो जे की वैल्यू अभी फ़िलहाल 1 है. 1 का मतलब आपका आई 1 से शुरू हो रहा है, सॉरी जे की वैल्यू 0 है आपकी. तो आपको aj+1 पे aj डालना है. तो यानी कि aj+1 का मतलब है कि आपको a1 पे a0 इंसर्ट करना है. अब आपने a1 पे, ये आपका a1 है, दिस वन a1 पे आपने a0 इंसर्ट कर दिया.
A0 मतलब 25, इसीलिए हमने क्या किया है, A1 का मतलब है कि आपको AJ+1 मतलब जो अगला आइटम है वहाँ पे पिछली वाली वैल्यू कॉपी डाउन हो जाए, मतलब वो शिफ्ट हो जाए। आपने क्या किया, 25 को शिफ्ट कर दिया। और जब आप लूप से बाहर आओगे तो ये जो 17 आया, ये कैसे आएगा, जैसे ही लूप के बाहर आओगे तो आप AJ+1 पे, क्योंकि लूप से बाहर आओगे तो जे आपका पीछे चला जाएगा, तो वहाँ पे आप आइटम को इंसर्ट कर देना। आपने आइटम में इसको कॉपी कराया था, आई विल शो यू वेयर इज इट। आइटम में आपने इसको कॉपी कराया था, ये देखो, की इक्वल टू ए लिस्ट आई। तो ये की जो है ये आपकी वैल्यू स्टोर करके रखा हुआ है 17। तो ये जो 17 वैल्यू है की वाली, ये ऑटोमेटिकली उसी पोजीशन पे चली जाएगी J+1 पे। अब जब आप लूप से बाहर आओगे तो J0 है, बाहर आने का मतलब है -1 हो गया, तो -1 + 1 यानी कि ए लिस्ट A0 पे आपका की चला जाएगा। की का मतलब है 17, A0 पे 17 चला जाएगा और A1 पे आपका 25, ठीक है। A0 पे 17 चला गया है और A1 पे आपका 25 आ जाएगा। ये देखिए, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। तो A0 पे हमने सेट कर दिया। अब A1 पे हमने ऑलरेडी A0 को सेट कर दिया था जो कि 25 था पहले, तो 25 पहले यहाँ शिफ्ट हो गया, उसके बाद अब जिसको रखना चाह रहे थे वो इधर शिफ्ट हो गया। इसीलिए हमें लूप को रिवर्स ऑर्डर में चलाना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड हेयर इंसर्शन शॉर्ट। इंसर्शन शॉर्ट में क्या होता है, शिफ्टिंग के लिए हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं और लूप हमारा रिवर्स ऑर्डर में चलता है, और जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे तो जो हमने आइटम कॉपी किया था वो हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड इंसर्शन शॉर्ट। होप you like this lecture. We have completed dictionary chapter. So thank you for watching the video. We will continue further for the next video. Enjoy and take care and bye.